एक नया एनिमेशन ओ हेनरी द्वारा लिखित आफ्टर 20 इयर्स ये स्टोरी मैं आपके लिए लेके आई हूँ। मलबेरी पब्लिकेशन 8 स्टैंडर्ड के लिए है इंग्लिश शॉर्ट स्टोरी में। डेफिनेटली आपको बहुत पसंद आएगा एनिमेशन, लेकिन उसके पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो कर दीजिए। "Good night, sir," said the policeman, passing on along his beat, trying doors as he went. There was now a fine, cold drizzle falling, and the wind had risen from its uncertain puffs into a steady blow. The few pedestrians astir in that quarter hurried dismally and silently along with coat collars turned high and pocketed hands. And in the door of the hardware store, the man who had come 1,000 miles to fill an appointment, uncertain almost to absurdity, with the friend of his youth, watched the street and waited. About 20 minutes he waited, and then a tall man, in a long overcoat, with collar turned up to his ears, hurried across from the opposite side of the street. He went directly to the waiting man. "Is that you, Bob?" he asked, doubtfully. "Is that you, Jimmy Wells?" cried the man in the door. "Bless my heart!" exclaimed the new arrival, grasping both the other's hands with his own. "It's Bob, sure as fate. I was certain I'd find you here if you were still in existence." Well, 20 years is a long time. The old restaurant is gone, Bob. I wish it had lasted, so we could have had another dinner there. How has the West treated you, old man? Bully! It has given me everything I asked it for. You've changed lots, Jimmy. I never thought you were so tall by 2 or 3 inches. Oh, I grew a bit after I was 20. Doing well in New York, Jimmy? Moderately. I have a position in one of the city departments. Come on, Bob. We'll go around to a place I know of and have a good long talk about old times. The two men started up the street, arm in arm. The man from the West, his egotism enlarged by success, was beginning to outline the history of his career. The other, submerged in his overcoat, listened with interest. At the corner stood a drugstore, brilliant with electric lights. When they came into this glare, each of them turned simultaneously to gaze upon the other's face. The man from the West stopped suddenly and released his arm. "You're not Jimmy Wells," he snapped. 20 years is a long time, but not long enough to change a man's nose from a Roman to a pug. It sometimes changes a good man into a bad one," said the tall man. "You've been under arrest for 10 minutes. Silky Bob. The police department at Chicago that is investigating you tipped us off that you would be here and asked us to arrest you. Going quietly, are you? That's sensible. Now, before we go to the station, here's a note I was asked to hand you. You may read it here, at the window. It's from Patrolman Wells." The man from the West unfolded the little piece of paper. His hand was steady when he began to read, but it trembled a little by the time he had finished. The note was rather short. "Bob, I was at the appointed place on time. When I saw your face in the torchlight, I saw it was the face of the man wanted in Chicago. Somehow, I couldn't do it myself, so I went around and got a plainclothesman to do the job. Jimmy." एनिमेशन तो आप लोगों ने देख लिया, चलिए अब हिंदी भी देख लेते हैं। आफ्टर 20 इयर्स मतलब 20 साल के बाद दो दोस्त मिलने वाले हैं। देखिए क्या होता है इसमें। ये स्टोरी ओ हेनरी द्वारा लिखित है। ये तो मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया था। एक आदमी दूसरे आदमी को मतलब बॉब को गुड नाइट करते हुए वो जो था वो पुलिसमैन था और वो चला जाता है। जब वो चला जाता है तब रास्ते से बहुत सारे जेंटलमैन जो है वो आते जाते दिख रहे हैं। वो पैदल चल रहे हैं, इसीलिए उनको पेडेस्ट्रियन बोला जाता है। उन्होंने ठंडी का मौसम है, बहुत ठंडी है आजू बाजू में, इसलिए सभी के कोट जो है सभी ने अपने कोट के बटन टाइट कर लिए हैं। जो कॉलर है जो गिरी हुई रहती है वो सबने चढ़ा ली है ताकि अपने नेक को भी ठंडी ना लग सके। और ऐसे में आप देख सकते हैं ठंडी का मौसम है, इसलिए सब लोग अपने घर जा रहे थे। लेकिन ये बॉब जो है ये स्टोर के सामने
खड़ा था। सारे के सारे स्टोर, सारे के सारे दुकान तो बंद हो चुके थे, लेकिन ये पता नहीं किसी का तो इंतज़ार कर रहा था। अरे भाई, किसी का नहीं, अपने दोस्त का इंतज़ार कर रहा था। डोर के पास खड़ा रह के, जहाँ पे उन लोगों ने ऑलरेडी मिलने के लिए जगह फिक्स करके रखी थी, जहाँ पे वो हमेशा मिलते थे, वही वाली जगह 20 साल के बाद वो एक दूसरे को मिलने वाले थे। जहाँ से ये देख रहा था उस साइड नहीं, उसके ऑपोजिट साइड से एक आदमी कोट पहन के, लंबा सा चौड़ा सा आदमी, अपनी कॉलर को नीचे गिराते हुए आ रहा था। उसने आते ही बोला, तुम बॉब हो क्या? अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम बॉब ही हो, ऐसे उसने बोला। तभी जो बॉब था, इसने भी बोला, ओ तुम जिमी वेल हो सकते हो, बराबर है ना, जिमी ही हो। और फिर दोनों में बातचीत शुरू हो गई। जिमी वेल जो है वो बोलता है कि हाँ, भगवान की कृपा से तो मैं अभी भी हूँ। और दोनों हैंडशेक कर लेते हैं और एक दूसरे से बोलना शुरू कर देते हैं। तभी जिमी वेल बोलता है कि बॉब, फॉर्चुनेटली हम दोनों मतलब मैं तो बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे सेटल हो चुका हूँ और 20 साल के बाद हम लोगों की मुलाकात हो रही है। बहुत लॉन्ग टाइम हो गया है। हम दूसरे एक दूसरे के चेहरे, हम दोनों की बॉडी, हम दोनों का रहन सहन, हम दोनों का बिहेवियर, सब बिल्कुल सब चेंज हो गया है। चलो आओ अब मिलजुल के थोड़ी सी बातें करते हैं। कौन कैसे कैसे जर्नी हुई, लाइफ कैसे बीती थी इस 20 सालों के बीच में, तुमने और मैंने क्या क्या किया था, ये सब बताने की बात आ चुकी है। तो अब वो चोक करता है और बॉब जो है वो बॉब उसे बोलता है कि चिढ़ाने की आदत तुम्हारी अभी तक गई नहीं, जैसे थे वैसे ही हो। लेकिन जिमी, तुम पहले इतने टॉल नहीं हुआ करते थे, अब तुम 2 नहीं तो 3 नियरली इंचेस तुम ज़्यादा हो गए हो, ऐसे वो उसे बताता है। और वो भी बताता है कि हाँ भाई, 20 सालों के अंदर कुछ ना कुछ तो चेंजेस होने ही थे। देखो मेरे चेंजेस हो गए हैं और मैंने अच्छी पोजीशन पे भी जॉब मिल गई है, मुझे गवर्नमेंट जॉब होती है वो वाली मिल गई है। चलो यार, यहाँ पे देख खड़ा रह के क्या, चलो थोड़ा सा बैठते हैं किसी जगह पे और फिर बातें करते हैं। ऐसे उन्होंने बोलना शुरू कर दिया था और चलना भी शुरू कर दिया था। वो वहाँ पे जो स्टोर है वहाँ पे तो बैठ के वो चाय पानी नहीं कर सकते थे, इसीलिए वो निकल पड़े। और रास्ते से जाते समय एक दूसरे ने कैसे सक्सेस हासिल की है वो बता रहे थे। एक्चुअली जिमी वेल जो है ये एक बहुत अच्छा ऑफिसर बन गया, पुलिस ऑफिसर। लेकिन बॉब जो है ये चोर है, इसका काम है चोरी, लोगों को लूटना, और लूटे हुए माल से इसके पास जो भी है ये सब लूटा हुआ है। ये जिमी वेल अच्छे से जानता था। लेकिन बॉब जो है, बॉब चोर है, उसको कैसे करे। अब वो एक जो ड्रग स्टोर होता है, मतलब बार बोला जा सकता है उसको, तो वहाँ पे लाइट चमक रहे थे। वो वहाँ पे एक कॉर्नर पे आ चुके थे, एक दूसरे को अजीब ही नज़रों से देख रहे थे, जैसे कि उन दोनों ने पहचान लिया था कि ये जिमी बेल नहीं है और ये बॉब भी नहीं है। तभी बॉब जो है वो उसने बाहर, मतलब थोड़ा सा दूर होते हुए बोला कि तुम मुझे जिमी वेल के तरह बिल्कुल नहीं लगते हो। आदमी सब बदल सकता है, लेकिन अपनी नाक जो है ना, 20 साल के बाद मिलो, नहीं तो 30 साल के बाद मिलो, उसकी नाक रोमन से लेके पब तक नहीं बदल सकती है, नाक नहीं बदलती है। हाँ, तो जिमी वेल ने बोला कि भाई नाक नहीं बदल सकती, लेकिन एक अच्छा आदमी एक बुरा आदमी बन सकता है। और उसने अपने पॉकेट से हथकड़ी निकाली और उसे बोला कि 10 मिनट के अंदर तुम गिरफ्तार होने वाले हो। सिल्की बॉब उसका नाम होता है। सिल्की बॉब एक वांटेड क्रिमिनल है। हर शिकागो की हर एक पुलिस स्टेशन में उसका एक बहुत बड़ा पोस्टर लगा हुआ है और ये जानता है, इसीलिए ये जिमी वेल उसे बताता है कि देखो मैं तुम्हें अरेस्ट करने आया हूँ। अच्छा ठीक है, अब तुम कैसे बहुत अच्छी तरीके से अगर अंदर आना चाहते हो, पुलिस स्टेशन चलोगे तो ठीक है, बदतमीज़ी करने की, शैतानी करने की बिल्कुल हिम्मत ना करना। और एक चीज़ मैं भूल गया, ये बोलते हुए उसने एक पॉकेट से एक छोटा सा लेटर, एक चिट्ठी निकाली और बॉब को हाथ में दे दी और बोला ये रीड कर लो, शायद ये तुम्हें तुम्हारे गम को भूलने में काम आ जाएगी। ये पेट्रोलम
वेल ने दी है, ये जो तुम्हारा फ्रेंड है जिमी उसने दी है। और उसके अंदर 2-4 लाइनें लिखी हुई थी। अब बहुत छोटा सा मैसेज था, लेकिन वो पढ़ के बॉब ने उसकी तरफ, पढ़ने के बाद उसने उसकी तरफ देखा। आपको पता है उस चिट्ठी में क्या लिखा होगा? चलिए देखते हैं। उस चिट्ठी में ये लिखा था, जिमी थे मतलब इनके दोस्त ने लिखा था कि जब तुम्हारे चेहरे के ऊपर टॉर्च लाइट पड़ी थी तभी मैंने जान लिया था कि ये मेरा दोस्त बॉब, ये अब पहले जैसा नॉर्मल छोटा सा बच्चा बहुत इनोसेंट था, वो वैसे नहीं रहा। ये तो शिकागो के जेल में जो वांटेड लोग हैं उसका बहुत बड़ा क्रिमिनल मतलब सिल्की बॉब है। और मैं 20 साल के बाद अपने हाथ से अपने फ्रेंड को अरेस्ट नहीं कर सकता था और ये करना भी नहीं चाहता था। इसीलिए फिर मैंने ऐसे आदमी को ढूंढा कि वो ये काम ईजीली कर सके। सॉरी, ऐसे उसको लग रहा था, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, ड्यूटी है, और ऐसा दोस्त होना भी नहीं चाहिए। तो ये स्टोरी आप लोगों ने देख ली है और देखने के बाद मुझे पता है आपको पसंद भी आएगी। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आभारी हूँ। ऐसे ही चैनल को देखते रहिए और सब्सक्राइब कर दीजिए ना।